हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विद्यालंकार। माय नेम इज़ अनुज पवार और आज हम ये सेशन में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर द गेट 2021 फॉर द सिविल इंजीनियरिंग ये हम आज देखेंगे। जैसे कि हमें पता है अभी हमारे पास टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है। सो इन दिस शॉर्ट ड्यूरेशन हम किस तरह मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे लेके आ सकते हैं, इसलिए ये आज का सेशन रहेगा। सो आउटलाइन फॉर दिस आवर टुडे सेशन इज़ कि हम आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है और कौन कौन से उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये आज हम डिस्कस करेंगे। साइमल्टेनियसली हम ये भी देखेंगे कि ये चैप्टर्स हम जो देखते टाइम हम किस तरह हमारे फॉर्मूले की लिस्ट चैप्टर वाइज प्रिपेयर करें सो दैट रिवीजन के टाइम पे हमें वो यूज़फुल हो जाए। एंड ऑल्सो विल सी कि हम प्रीवियस ईयर के कौन कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगा सकते हैं और हमारे जो CTQ वीडियोस है वो किस तरह रेफर कर सकते हैं। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द CTQ क्वेश्चन you can subscribe our channel, and for more updates you can click on the bell icon. So we'll moving to the our next part, that is the important subjects. So यहाँ पे अगर देखोगे तो important subjects में we have classified first as soil mechanics, second is environmental engineering, third one is surveying, fourth one is hydrology, fifth one is transportation and the last one is the maths. So ये इतने सारे subjects important है। So हमें ये एंडिंग पैच में जो हमारा 40 to 45 डेज का जो पैच बचा है, ये इस दौरान हमें ये सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हमें डिस्कस करने हैं। तो अभी मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस है वो हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। सो फर्स्ट है हमारा सॉइल मैकेनिक्स। अंडर दैट वी हैव क्लासिफाइड 7 चैप्टर्स। सो फर्स्ट आता है आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है एट सर्टेन डेप्थ, दैट मे बी डिफरेंट लोडिंग कंडीशन, इट मे बी आइदर सर्कुलर फाउंडेशन, स्ट्रिप लोडिंग और यूनिफॉर्म लाइन लोडिंग, or it may be a point load. So that we have to find out under this stress distribution. Consolidation, we have to find out the settlement of the soil, that is we are specially dealing with the primary consolidation. We also want to see here the time duration also, so that will be covered under the consolidation part. Third one is the shear strength, so we have to find out the shear strength of the soil. So two basic parameters, shear parameters, that is cohesion and friction angle, will be the important with respect to this chapter. Next one is shallow foundation. So we have to see the ultimate bearing capacity for the shallow foundation by different methods, by Terzaghi, by Skemptons, by Meherov, by IS code, and some field test also regarding the shallow foundation. The next bit will be your pile foundation. Here also we have to find out the ultimate bearing capacity for the pile. So for that we have to see the static methods, dynamic methods, and some field methods to find out the ultimate bearing capacity for the pile. And the next model will be the earth pressure. So ये earth pressure में we have to find out the active earth pressure or passive earth pressure, and with respect to the either soil is cohesionless or cohesive. Also here the depth of the tension crack will be the important for the earth pressure. And the last model from the soil mechanics will be the stability of the slope. So here we have to check the stability for the finite as well as for the infinite slope. So among the soil mechanics, if you will see that here are the 7 modules from which there is chances, more chances that question will be asked and having the weightage of 14 to 16 marks. Our second subject is environmental engineering 2, जिसका weightage almost 10 to 12 marks है, जिसके अंदर हमने important chapters classify किए हैं। जैसे कि हमारा first one है quality characteristics of the water. सो यहाँ पे हमें डोमेस्टिक वाटर के रिगार्डिंग जो क्वालिटी पैरामीटर्स रहते हैं, जैसे कि उसका हार्डनेस रहेगा, उसका पीएच रहेगा, उसका अल्कलिनिटी रहेगा, बेस्ड ऑन दैट कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आने के चांसेस रहेंगे। सेकेंड है आपका सेडिमेंटेशन एंड कोएगुलेशन। सो स्पेशली यहाँ पे जो सेडिमेंटेशन टैंक रहेगा उसकी डिजाइनिंग के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और जो कोएगुलेंट यूज करते हैं उसका डोसेज, इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे पूछे जाने की चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन। सो फिल्ट्रेशन पे हमें स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, सो फिल्ट्रेशन के रिगार्डिंग कुछ हमें डिजाइनिंग्स देखने पड़ेंगे और डिसइंफेक्शन के दौरान हमें क्लोरीन का डोसेज देखना पड़ेगा स्पेशली, जैसे कि रेसिडुअल क्लोरीन कितना रहेगा या अमाउंट ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड टू डिसइंफेक्ट दैट रिस्पेक्टिव क्वांटिटी ऑफ वाटर। सो इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस है।
So these three topics are specially related to your domestic water. Now further, when we are classifying under the sewage, so हमें characteristics of sewage देखने हैं, स्पेशली जो BOD पैरामीटर रहता है, तो इसके ऊपर आपका मैक्सिमम टाइम्स 90% क्वेश्चन जनरेट होने के चांसेस रहते हैं. तो ये बीट आपको अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा. अंडर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंडर एक इंपॉर्टेंट बीट है जिसे हम बोलते हैं एज एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस. तो ये ASP पे भी एक न्यूमेरिकल आने के बहुत बड़े चांसेस रहते हैं. सो हमें यहाँ इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है. लेटर ऑन वाइल डिस्पोजिंग द थिंग्स ऑफ द सीवेज, we have to also see the sludge digestion, especially the strength reduction problems, the quantity of the digested sludge, the volume of the digester. So those type of numericals will be asked from the sludge digestion. And the next and the last bit will be the air pollution and municipal solid waste. So यहाँ पे आपको बहुत बार requirement of the air निकालना पड़ता है for the combustion. And regarding the air pollution, we must know कि how to find out that air quality parameters. So these are the things which is important from your second important subject known as environmental engineering. So ये ध्यान में रखना कि जब आप ये subjects पढ़ोगे तो हमारा first motto ये रहना चाहिए कि हमें ये chapters को पहले target करना है, so that ये chapter से आपके question जो है वो ज़्यादा बनते हैं. Our next two important subjects is one is surveying and one is hydrology. तो सर्वेइंग का जो वेटेज दिया गया है वो 4 मार्क्स का है. तो लास्ट 3 ईयर से ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो 2 क्वेश्चंस आते हैं वो एक ही सिंगल चैप्टर से आते हैं. जैसे कि इन दिस 2020 देयर इज अ क्वेश्चन विच इज आस्क्ड फ्रॉम द ट्रैवर्सिंग एंड द वन विच इज क्वेश्चन विच इज आस्क्ड फॉर द सेकेंड सेट विल बी फ्रॉम द लेवलिंग. सो हियर आर द 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम द सर्वेइंग. वन इज योर कंपास सर्वे, वन इज ट्रैवर्सिंग, one is leveling. So in that leveling you have to also see the trigonometric leveling as well as reciprocal leveling. The fourth one is tachyometry, and the last and the important will be the photogrammetry. So these are the sufficient chapter to revise from the subject which is known as a surveying. And the next will be the hydrology. So in this hydrology the almost weightage is around 3 to 4 marks. So here we must know what is precipitation, evaporation, how to find out the quantity of that. The second will be your frequency rainfall and the probability. So we have to find out the hydraulic risk in this chapter. The next one will be the infiltration. So we have to see for the infiltration indices such as the phi index and W index. So this is a very important topic जिससे यहाँ पे question आने के chances रहते हैं. And the one sure short question will be from the always from the hydrograph. So especially from the unit hydrographs will be asked. And in case some of the times the flood estimation से भी आपको एक बार प्रॉब्लम पूछा जा सकता है. सो दीज आर सम 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम द हाइड्रोलॉजी दैट यू कैन रिकॉल while in these remaining days. And we have also sorted 2 more important subjects. The one is transportation and the another is a maths. So in the transportation, if you will see that there is a weightage of almost 7 to 9 marks. So under that we have just divided the 3 subtopics, that is your geometric design of the highway, traffic engineering and the pavement design. So under that geometric design of the pavement, you can geometric design of the highway, you can see that how to find out the SSD, that is stopping side distance, OSD, intermediate side distance, that compensated gradients. So like that the numericals will be asked from this geometric design. The important bit will be the traffic engineering. This is a most important thing because इससे 3 to 4 marks का question 100% आता ही है. तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक को जो साइकिल लेंथ रहता है, ऑप्टिमम साइकिल लेंथ रहता है, ग्रीन रेशो रहता है, वो आपको यहाँ पे डिज़ाइन करना है. तो ये आपके ट्रैफिक इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग के प्रॉब्लम्स रह सकते हैं. एंड रिगार्डिंग द पेमेंट डिज़ाइनिंग, जो कि आपका फ्लेक्सिबल रहेगा या रिजिड पेमेंट की डिज़ाइनिंग की आप देखोगे तो वहाँ पे जनरली वैपिंग स्ट्रेसेस, बाद में स्पेसिंग कितना रह सकता है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स के बीच में, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको पूछने के चांसेस रहते हैं. सो ये आपकी इंपॉर्टेंट बिट्स है फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग. And our last important subject will be our maths. So ये maths का huge weightage है, that is 14 to 15 marks. The first topic will be your linear algebra. तो यहाँ पे आपको matrices के ऊपर rank of the matrix, eigen values, इसके दौरान आपको question पूछने के बहुत chances रहते हैं. Second bit है आपका calculus. So in the calculus the problems will be from the maxima minima,
देन डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. द थर्ड विल बी योर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज ODE. सो जहाँ पे हम पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन एज वेल एज सम फोरियर सीरीज के रिगार्डिंग भी न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस रहते हैं. फोर्थ वन विल बी योर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स. सो इन दैट वी हैव टू सी द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, लीनियर रिग्रेशन क्या रहता है, पॉइसन्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होता है. सो ये टॉपिक्स आपको यहाँ पे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट रहेंगे. एंड द लास्ट विल बी योर न्यूमेरिकल मेथड. सो यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड में हमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फॉर द लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर अल्जेब्रिक इक्वेशंस हमें देखने पड़ेंगे, और इंटीग्रेशन बाय द ट्रेपेजोइडल एंड सिम्पसन्स रूल्स. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बीट्स है दैट इज रिगार्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू द मैथ्स. And apart from these 6 technical subjects, you can also focus on the aptitude part. So ये apti जो है वो भी आपका important bit है जिससे आपको 14 to 15 मार्क्स का स्कोरिंग मिल सकता है. So ध्यान में रखना बच्चों कि अभी जब प्रिपेयर करोगे तो ये सारे मॉड्यूल में से फर्स्ट ये चैप्टर के रिगार्डिंग आप प्रिपरेशन करो, सो दैट इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस जो रहते हैं वो मैक्सिमम रहते हैं. अभी ये जब आप प्रिपेयर करोगे साइमल्टेनियसली यू कैन ऑल्सो मेक द चैप्टर वाइज फॉर्मूला लिस्ट. जैसे कि सॉइल मैकेनिक्स में सपोज अभी मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का एक चैप्टर पढ़ा है, तो उसके जो फॉर्मूलेज है वो 1 by 1 लिस्ट आउट करो, सो दैट रिविजन के टाइम पे वो आपको यूजेबल रहेंगे. हाउ टू प्रिपेयर दैट फॉर्मूला लिस्ट, इसके रिगार्डिंग मैंने एक मेरा प्रिपेयर किया हुआ फॉर्मूला लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे दिया है, तो आप वो रेफर कर लेना. इन दैट सॉइल मैकेनिक्स का पूरे जितने भी चैप्टर्स इस गेट के सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं, हर एक मॉड्यूल से मैंने जो प्रिपेयर किया हुआ फॉर्मूला लिस्ट है वो वहाँ पे डाला है, तो आप वो रेफर कर सकते हो, सो दैट वेन एवर यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स एट दैट टाइम आपको आसानी से फॉर्मूलेज याद हो सकते हैं. सो एंड द लास्ट बिट फॉर द टुडे सेशन, solving the previous year question papers and the CTQ for the important subjects. Now जब आप previous years के question paper solve करोगे, टारगेट करना कि last 5 to 6 years के question paper को, बहुत ही पुराने question paper solve करने की ज़रूरत नहीं है. एंड simultaneously CTQ question, इसके लिए मैं आपको मेरे जो CTQ के वीडियोज़ है फॉर द सॉइल मैकेनिक्स फॉर द फर्स्ट चैप्टर दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, इसके रिगार्डिंग मैं लिंक फिर से डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, तो आप वो रेफर करना, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स आने की कोशिश रहती है, चांसेस रहते हैं, जिसके ऊपर आपको उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का आपका अप्रोच किस तरह रहना चाहिए, ये वहाँ पे डिस्कस किया गया है. सो द लास्ट नॉट द लीस्ट वन, अभी हमें मार्क्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना है. सो इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग द सब्जेक्ट्स एंड द ह्यूज कंटेंट ऑफ दैट, विल गो विद द मार्क्स. सो मार्क्स जहाँ पे रहेंगे वो टॉपिक को हम ज़्यादा टारगेट करेंगे. सेकेंडली ये ध्यान में रखना, अभी हमें गेट के वर्चुअल कैलकुलेटर को फैमिलियर होना पड़ेगा, क्योंकि अभी जहाँ पे गेट के लिए एग्जाम के लिए जाओगे तो आप नॉर्मल कैलसी यूज़ नहीं कर सकते हो, तो हमें वो वर्चुअल कैलसी से भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है. तो रिमेनिंग डेज में थोड़ा सा ऐप स्टोर से जाके, प्ले स्टोर से जाके गेट का ये वर्चुअल कैलकुलेटर डाउनलोड करना एंड उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखना कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन दिस कैलकुलेटर. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, so for the remaining days just follow the CTQ videos of our channel so that it will definitely help you to crack this exam. Thank you.